Professor Nilofer Khan, Vice Chancellor, University of Kashmir, Professor Sudhakar Panda, President, Association Indian Economics and Allied Sciences Association, Professor Dhananjay Singh, Mr. Alok Kumar, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, ladies and gentlemen. Over the years, Indian Economics and Allied Sciences Association has contributed to improve understanding of development process of our country and economic policies, and enabled investors as well as policymakers to appreciate the potential of opportunities in various regions. I am truly delighted that the 4th annual conference over the next 3 days will discuss 3 important themes: India's development strategy of Atmanirbhar Bharat, development issues in UT of J&K and Ladakh, and development issues of tribal population in India. Friends, despite uncertainties across the globe and profound impact of geopolitical events on the world economy, we have successfully defied the global slowdown. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the government policies, his determination to make India self-reliant and globally competitive, sectoral policies and programs for holistic development has put the economy on a sustainable path of high growth. It is good to remind ourselves that once upon a time, India was called Sone ki Chidiya, and we represented 25% of the world's total industrial output. But beyond nostalgia, we must actively contribute to the efforts of Honorable Prime Minister, who is bringing back the golden era and shaping India's economic trajectory. Today, we are the world's 5th largest economy. We are the most favored destination for trade and investment, and as revealed by the major economic think tanks of the world, we continue to be fastest growing economy in the world. And most importantly, fruits of our growth are percolating to the grassroots. I know a lot of research has been done on Honorable Prime Minister's economic policies besides analysis of his vision to make India a $5 trillion economy by 2024-25. His policies could be explained in 3 words: inclusive, progressive, and sustainable. From GST, Atmanirbhar Bharat campaign, infrastructure development, JAM, to plethora of social schemes to uplift marginalized section of society, he has ensured accelerated economic growth, ease of doing business for global companies, and equity and opportunity for all the citizens. It was also reflected in his Independence Day address this year, when he laid a blueprint before us to build Viksit Bharat by 2047. And in September this year, during G20 summit in New Delhi, Honorable Prime Minister gave the world a new vision of human-centric approach instead of GDP-centric approach. I strongly believe our country is full of optimism, boundless energy, and ambition, and expected to contribute 15% of global growth in the current financial year. We are moving closer to our goal of making this truly the India's century, and I am confident our economic resurgence will be the key driver of global growth. The Economist magazine in the latest issue has written about India's wealth distribution, highlighting that the demography and geography of Indian wealth is broadening, and the money is product of real economy rather than of financial engineering. मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष में वो क्षमता आई है, वो सामर्थ्य आया है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी विकास के डेवलपमेंट के लाभों को साझा कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत, सच है कि ये पहला देश है
लेकिन उस मिशन से जुड़े हुए डेटा हम तिजोरी में ताला बंद करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके। हमारा इकोनॉमिक विजन नैरो नहीं है, बल्कि हम सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम की मजबूत नींव पर खड़ा है। कौटिल्य के 6 मूलभूत आदर्श समन्वयम, समछद्म, समाधृतम, समानियाकूति, प्रज्ञानार्थम, अपराविर्णु वयम आज भी हमारा देश मार्गदर्शन कर रहा है। ये सूत्र हमारा कि विकास एक तरफा न हो, बल्कि हमारा सतत विकास इंडस्ट्री, बिजनेस और नागरिकों के लिए समान अवसर का सृजन करे, इसकी चर्चा महाभारत काल में महाभारत में भी हुई थी। यथा देशांग यथा कलंग, यथा बुद्धिम यथा बलम, अनुशिष्य प्रज्ञा राजधर्म, अथर्ते तत् ऋते रतः। हर एक प्रयास होना चाहिए कि विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं की समान पहुंच सभी नागरिकों तक हो, वंचित वर्ग का विशेष रूप से कल्याण हो, राज्य के पास नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी ताकत हो और अच्छे स्तर का बुनियादी ढांचा भी हो। मैं समझता हूँ कि जो भी इस बात पर विचार करेगा, पिछले 9-9.5 वर्षों में हर एक राज्य, हर एक यूटी में समाज के सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के विकास की व्यापक और समग्र योजनाएं पहुंचाने की कोशिश हुई है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारतीय राजनीति की केवल शब्दावली नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आया है और 9 वर्षों से इस देश में विकासवाद की राजनीति की एक नई परिभाषा देश के नागरिकों ने देखी है। कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर एक नई क्रांति को जन्म दिया है और गरीब से गरीब व्यक्ति पूरे सम्मान, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा पाकर अपनी नई आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में आज जुटा हुआ है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 12 करोड़ परिवारों तक नल से जल, 3 करोड़ से अधिक आवासहीन नागरिकों को आवास, 30 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवरेज, 3 करोड़ घरों में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली, लगभग 40 करोड़ नागरिकों का मुफ्त इलाज, 11 करोड़ एलपीजी सिलेंडर, 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट, 49 करोड़ जनधन अकाउंट और अब तक 25 लाख करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अध्ययन में मैं समझता हूं कि आप सबके लिए या शोधार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए एक नया आयाम जोड़ दिया है। आप लोगों के प्रोफेशनल समुदाय से जुड़े ब्रिटिश अर्थशास्त्री निकोलस स्टर्न का कुछ दिन पहले एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास की एक पूरी नई कहानी और इबारत लेकर आए और संपूर्ण विश्व के लिए उनकी स्पष्ट नीति और प्रतिबद्धता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, सन 1936 में 1936 में प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्ज ने विश्व की बदहाल अर्थव्यवस्था के मद्देनजर अपनी इकोनॉमिक थियरी में 3 महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन का जिक्र किया था। पहला, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा मूवमेंट ऑफ मनी और तीसरा प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। केन्ज का कहना था कि इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का स्पष्ट उद्देश्य और व्यापक इंटरप्राइजेज शुरू करने की क्षमता ये बहुत आवश्यक है। अगर देखा जाए तो ये थ्योरी 8 दशक से ज़्यादा पुरानी हो गई, लेकिन मैं जब विचार करता हूँ तो भारत ने पिछले 9-9.5 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है, उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि बुनियादी ढांचों में स्पष्ट सोच के साथ निवेश, बढ़े हुए खर्च ने उन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहयोग किया है। और आज ये बात कहने में मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा समय में हूँ
और मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, पता नहीं किस कारण से, खास तौर से जो हमारे बॉर्डर के राज्य थे, सीमाओं के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शायद इतना कभी नहीं हुआ था पिछले 9-10 वर्षों में जो इस देश में हुआ है। अगर पहले शायद हमने ध्यान दिया होता तो जो आज स्थिति बनी है, अभी हमें 5 साल 7 साल इंतजार करना पड़ेगा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सीमाओं के पास बनाने में, शायद ये काम हमने पहले समाप्त कर लिया होता। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पष्ट सोच दी है। 140 करोड़ नागरिक आज जानते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, उनका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है। जिस विकसित भारत या इंडिया 2.0 के लक्ष्य को लेकर देश बढ़ना चाहता है, उसमें जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, MSME पर फोकस के साथ समावेशी विकास तथा यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, ये 6 महत्वपूर्ण पिलर्स होंगे जिसमें सभी राज्यों तथा यूटीज को सामूहिक प्रयास करना होगा। अगर ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतरीन सुधार किए हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर में कॉम्प्लायंस बर्डन है, उसे कम करने की आवश्यकता है और इस दिशा में आप जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 9 वर्षों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, रोड, ब्रिजेज, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक माइलस्टोन देश ने अर्जित किए हैं और विस्तृत व्यापक गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा है। आने वाले भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बने, इसके प्रयास हो रहे हैं, इसे और तेज करने होंगे। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल इक्वलिटी आने वाले भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेगी तथा MSME उद्योगों में भी इसके माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। जम्मू कश्मीर समाज के विभिन्न वर्गों पर इसके प्रभाव को देख भी रहा है, महसूस भी कर रहा है। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अभी चंद क्षणों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 5G लैब, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में और दूसरी IIT जम्मू में शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बात करना मैं आवश्यक समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक कहानी मुझे ध्यान में आती है। मैं बात शुरू करूँ उसके पहले 19वीं शताब्दी के एक मशहूर स्वीडिश लेखक अगस्त स्ट्रीनबर्ग ने अपनी पुस्तक सन ऑफ ए सर्वेंट में लिखा है कि एक नौजवान किसी गांव में जाता है, वहाँ लोगों के हालात देखकर उसे एक आइडिया सूझता है। वो अपने दोस्तों वगैरह से कुछ पैसे उधार लेता है, गांव वालों को जाकर फूस, आप समझते होंगे, कि टोपी बनाने के लिए सबको राजी करता है। उसके मुताबिक उन्हें ट्रेनिंग दिलाता है। धीरे धीरे बेहतर डिज़ाइन, बेहतर प्रोडक्शन, मार्केटिंग लिंकेज के चलते कारोबार बढ़ने लगता है। गांव में समृद्धि आने लगती है, नए स्कूल खुलने लगते हैं, लोगों के घरों के भीतर और बाहर परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तभी एक दिन एक व्यक्ति उस गांव में आता है और गांव वालों से कहता है कि देखो, ये नौजवान तुमसे फूस की टोपी बनवाकर खुद अमीर हो गया है। स्ट्रीनबर्ग ने लिखा है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति यह भूल गया था कि गांव में सैकड़ों सालों से सिर्फ फूस ही पैदा होता था। वह रिसोर्स तो पहले से मौजूद था। नई आइडिया, नया उद्देश्य, नया इंटरवेंशन आया और उससे गांव में समृद्धि आई। जम्मू कश्मीर के हालात भी उसी तरह से प्रारंभ हुए और मैं आज कहना चाहता हूं कि यहाँ विकास, समृद्धि या जम्मू कश्मीर के लिए भी, देश और दुनिया के किसी इलाके के लिए भी
आवश्यक है कि जब तक शांति नहीं होगी विकास और समृद्धि नहीं आ सकती। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और मुझे खुशी है कि पिछले 4 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफ़ी हद तक शांति स्थापित करने में हम सबको सफलता मिली। अब पत्थरबाजी इतिहास की घटना हो गई है। हमारे पड़ोसी देश या आतंकवादी संगठनों के इशारे पर कभी 125-150 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा करता था, वो भी अब इतिहास की बात हो गई है। अब यहाँ किसी डिक्टेट के आधार पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर का नागरिक जीने के लिए स्वतंत्र है। ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि है पिछले 3-4 वर्षों की। कुछ लोगों ने संसाधनों पर अपना वर्चस्व इकट्ठा कर लिया था। एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई थी जिससे जम्मू कश्मीर को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। आज यहाँ पोटेंशियल बहुत है, अभी भी अनटैप्ड है और मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में ईमानदार कोशिश हो रही है। मैं 4-5 सेक्टर का जिक्र करूँगा और संक्षेप में जिक्र करूँगा। रश्मि सिंह यहाँ बैठी हैं, विस्तार से बताएंगी। कोविड के दौरान भी हमारी जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो पॉजिटिव थी, देश के कम राज्यों में थी। टैक्स की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज से हमारा जीएसटी कलेक्शन कहीं बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े, इसकी कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा योगदान होता है। चाहे कनेक्टिविटी रोड की हो, रेल की हो, एयर की हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़े, इसकी भी कोशिश की गई है। और मुझे याद है जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 10 घंटे से ज़्यादा लगता था। अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जा रहे हैं और अगले साल 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। कश्मीर कन्याकुमारी से इसी मार्च महीने में रेलवे से जुड़ जाएगा। अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूं तो 2020 में 18 फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर आती थी और 18 जाती थी। अभी 126 फ़्लाइट्स का ऑपरेशन श्रीनगर एयरपोर्ट से हो रहा है। जम्मू की बात करूं तो कुल 6 फ़्लाइट, 3 आती थी, 3 जाती थी। अभी 44 फ़्लाइट ऑपरेट कर रही हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शुरू हुई थी, गो फर्स्ट के बंद हो जाने से वो बंद हो गई है। कोशिश हो रही कोई दूसरी एयरलाइन जल्दी से जल्दी इसको शुरू करे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है तो 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर 3रे नंबर पर है देश में, और उत्तर प्रदेश से केवल 1 किलोमीटर सड़क हमने कम बनाई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया। इस आंकड़े को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑनलाइन सर्विसेज में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। 1050 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हैं और ऑटो एस्केलेशन मोड में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सारी सर्विसेज हम लोगों ने कर दी है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो समय सीमा है उसके भीतर अगर सर्विस नहीं मिलती है आम नागरिक को तो फाइनेंशियल पेनाल्टी उसी दिन लग जाती है। 782 लोगों पर यह लग चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी का जहाँ तक सवाल है तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूँ कि इस तरह का सिस्टम बनाने में हम सबको सफलता मिली है कि किसी देश के किसी राज्य से हम कम नहीं हैं, बेहतर ही होंगे। ये बात मैं ज़रूर जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। NEP का हमारे वाइस चांसलर साहिबा ने अभी आपको बताया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा किया है। और नॉलेज ऑन व्हील्स और डिज़ाइन योर डिग्री को UGC ने बहुत सराहा है और मुझे लगता है कि शायद मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ आने वाले दिनों में देश के बाकी विश्वविद्यालय भी इसे निश्चित रूप से फॉलो करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। 5-6 सेक्टर हैं जिनमें इंटरवेंशन ठीक से हो, इसकी कोशिश हो रही है। टूरिज़्म पिछले साल 1,88,00,000 लोग आए थे। इस साल सितंबर तक 1,70,00,000 लोग आ चुके हैं। यह आंकड़ा 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर
को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। देश के माने जाने कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिल करके हमारी ये दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एग्रीकल्चर और अलाइड लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी ऑफिसर्स ने मिलकर के पिछले साल ये पॉलिसी बनाई थी। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर की जीडीपी में है 5 साल बाद वो निश्चित रूप से न्यूनतम 2.5 गुना वृद्धि होगी, ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जो 29 प्रोजेक्ट उसमें चिन्हित किए गए हैं वो साइलोज में नहीं, जो हमारी कमी थी जैसे फॉडर डेफिसिट थी उसे हम कैसे पूरा करेंगे, मिल्क डेफिसिट से अब मिल्क सरप्लस स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। एक इंटरवेंशन की मैं चर्चा करूंगा केवल, क्योंकि समय नहीं है कि मैं हर विषय पर। कश्मीर में सामान्य रूप से एक ही क्रॉप होती थी, हार्टिकल्चर के अलावा पैडी पर ही यहाँ के किसान ज़्यादातर फोकस करते थे। पिछले साल से रबी की फसल अच्छी मात्रा में होने लगी है। आज से अगर 5-6 महीने पहले कोई कश्मीर आया होगा, वैली को जिसने देखा होगा, तो यहाँ अखबारों ने खबर लिखी कि एक येलो रिवॉल्यूशन आ गया है कश्मीर में। मस्टर्ड की भारी मात्रा में फसल दिखाई पड़ रही थी, खूबसूरत भी दिख रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि ये सरसों की पैदावार से लाभ क्या होगा, खासतौर से मस्टर्ड से। तो एक सामान्य आदमी यही सोचेगा कि खाने के लिए तेल एडिबल ऑयल मिल जाएगा, लेकिन इस एक इंटरवेंशन से जम्मू कश्मीर में 3 लाभ हो रहे हैं। एक तो हमें तेल मिलेगा ही, दूसरा जो ऑयल के हिंदी में खली हम लोग कहते हैं उससे फॉडर डेफिसिट की कमी होगी, और तीसरा जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, 1 महीना 35 दिन पहले मधुमक्खियाँ आ गई हैं, जिससे हनी और बी कीपिंग करने वाले हमारे फार्मर्स को इस साल बड़ी मात्रा में लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से जो 29 प्रोजेक्ट हमारे विशेषज्ञों ने बनाई है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इंडस्ट्री मोटे तौर पर आज़ादी से लेकर 2021 तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ 14-15 हज़ार करोड़ का था। भारत सरकार ने जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है, उसमें जो इंसेंटिव है, मैं देश भर से आए हुए लोगों के सामने बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज देश के किसी राज्य में वैसा इंसेंटिव नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है। जब पॉलिसी हम लोग फ्रेम कर रहे थे, स्टेक होल्डर से चर्चा कर रहे थे, ये बात ध्यान में थी कि जम्मू कश्मीर में बाहर से आकर के निवेश करने वाले के लिए कुछ ऐसी सुविधा चाहिए। तो 80,000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास हैं। आज ग्राउंड पर लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के काम हमारे चल रहे हैं, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में बाकी भी ज़मीन पर उतार दिए जाएंगे। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ की इकॉनमी भी बढ़ेगी। हेल्थ पैरामीटर्स को अगर आप देखेंगे तो जिस भी पैरामीटर में आप देखेंगे वी आर मच अहेड ऑफ नेशनल एवरेज। और जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर, हर फैमिली को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण दिया हुआ है। ये जो हमारी, मैं मानता हूँ कि प्रशासन और सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि समाज के जो कमज़ोर और वंचित लोग हैं उनका ध्यान रखें, और इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अच्छी पहल की है। ऐसे लोग जो लैंडलेस थे, जिनके पास घर नहीं था, उन्हें सरकारी ज़मीन दे करके उनका घर बनाना। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, देश में बहुत पहले हो गया था, वो पूरी तरह से कम्युनिटी राइट्स दे दिए गए हैं। इंडिविजुअल राइट्स भी अधिकांश लोगों को जो जेन्युइन है वो दिए जा चुके हैं, और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में भी अच्छा काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। मोटे तौर पर आज मैं देख सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भी विकसित भारत के लक्ष्य में बाकी राज्यों से कम योगदान नहीं करेगा।
गवर्नेंस 2047 पर सीरियस चर्चा जम्मू कश्मीर में हो रही है। 3-4 बार हमारे लोग बैठ चुके हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। 2047 एजुकेशन 2047 क्या होगा, इस पर भी हमारे वाइस चांसलर्स, हमारे एकेडमिया से जुड़े हुए लोग बेहतर ढंग से इसकी योजना बना रहे हैं और यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट पर विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर प्रशासन का रहा है। और मैं कह सकता हूं कि एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम करते हैं यहाँ पर। उसमें एक प्रमुख लक्ष्य होता है कि जब हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर एक पंचायत को 1 साल तक देखते हैं तो बैक टू विलेज कार्यक्रम में हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना जो खुद एंटरप्रेन्योर बन सकता है और उसे फाइनेंशियल मदद पहुंचाना, ये प्रशासन जिम्मा लेता है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज से 6 महीने पहले जब बैक टू विलेज 4 किया था हमने, तो एक दिन में हमारी 4250 पंचायतें हैं, एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए बैंकों से आर्थिक सहायता मुद्रा के तौर पर दिलाने में हमें सफलता मिली थी। मोटे तौर पर आज 85,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं और 7 लाख के आसपास हमारी बहनें उससे जुड़ी हैं। इस बार इसे हम 1 लाख करना चाहते हैं। उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में महिलाओं का या बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और ये जो हमारी प्रायोरिटी एरिया है, हर पंचायत में यूथ क्लब बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स आप जहाँ जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ आपको हर पंचायत में स्पोर्ट्स फील्ड मिलेगा। देश के किसी विकसित राज्य से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का जम्मू कश्मीर में है और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इसमें हमारी पूरी मदद की है। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लिया है। और मैं इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का स्वागत भी करता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण जो एक नई व्यवस्था यहाँ पैदा हुई, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हों, जनसामान्य एक बेहतर जीवन जी सके, क्वालिटी लिविंग का मौका मिले। हमारा लक्ष्य है कि ह्यूमन तथा फिजिकल रिसोर्स दोनों का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात अब लोगों को समझ में आने लगी है। एक ही विजन और एक ही मिशन है कि हर एक संस्था विकास उन्मुख होकर जम्मू कश्मीर की प्रगति में लगे। और मुझे खुशी है कि इसमें यहाँ के लोगों का बड़ा सहयोग है। मैं आश्वस्त हूँ कि जम्मू कश्मीर एक नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के संकल्प में निश्चित रूप से योगदान देगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 3 दिन में जो इस मंथन से अमृत निकलेगा उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिले। ये हमारी वाइस चांसलर साहिबा या हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ये यहाँ से अमृत लेकर जाएंगे तो उसको कैसे हम जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, ये हम जरूर कोशिश करेंगे। मैं बाहर से आए अतिथियों का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।